हॉलैंड श्रमिक संघ FNV के प्रतिनिधि मंडल से उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन द्वारा संचालित कौशल विकास केंद्र का दौरा किया। उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन व BLWI द्वारा संचालित कौशल विकास केंद्र पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले महिला व युवा श्रमिकों को कुशल श्रमिक बनाने के उद्देश्य से पैंट्स व कोट्स कौशल परिषद भारत सरकार द्वारा प्रमाणित पेंटिंग कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास केंद्र का हॉलैंड श्रमिक संघ FNV के प्रतिनिधि मंडल ने बहन जमानी मैंसो के नेतृत्व में रॉब हेरमानस व रिकार्डो थॉमस ने दौरा किया। रॉब हेरमानस व रिकार्डो थॉमस भी पेशेवर पेंटर हैं। ने कौशल विकास केंद्र पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतिभागियों को पेंटिंग की तकनीक के व पेंटिंग टूल्स के बारे में जानकारी दी। Maybe we start with your introduction. Okay, yes. Okay. Hello, my name is Samani Menso. I'm a union officer for the union in the Netherlands, FNV. And I also work together with the Building and Woodworkers International, and of course, a lot of unions in India, and also unions for women as well. And we are very proud on the unions. We have very, very good relationship. They are strong unions, so I'm really proud and honored to be in India. You know what I like the most of the training today? We had women painters, and I call them artists, because they were very good in those little details. And Rob, Ricardo said it also, and Rob as well. They are like restoration painters. We have them a lot in the Netherlands. And if you're here, I don't know if the cameraman can zoom in on the plafond or on the right side, the ceiling, and these kind of paintings, and all the way on the road from in Agra. You see the little paintings, the temple. So it's a real Indian style, I guess, the architecture and the style. And the trainees today, they had those skills. They were very, very good. Yes. आगरा के कैसा लगा? और आप जब स्कूल के अंदर गए तुलाराम शर्मा जी के, तो वहाँ पे जो महिलाएं थी उनको क्या कुछ आपने सिखाया और क्या कुछ सीखा? Okay, I think बहुत सवाल इन लोगों से करना पड़ेगा. So saying that you went to this center today, because earlier this was a child labor school, now this is a skills training center. So what did you teach them today, to the trainees today? What did you teach them? Today, I'm the painter from Netherlands. Today we go to the school, training school, and it was the first time for me. So we go a little bit look and check what everybody can do, and we see that the lines was not straight, and we take tape from Netherlands and say how you do it then, and let us see how you can paint. And I think everybody see it, and I think he like it the way what we think. And we get brushes too from Netherlands. When in India you paint a lot of with flat brushes, and in Netherlands we paint with the round circle paints. And we let us see what we do, and a little bit we can see what the people do in India. And I think it was a nice experience for me there too, and I think for the people there the same. महिलाएं पेंटिंग के क्षेत्र में इंडिया में काफी. And then my question would be to you is, you have seen training here in India now, at the skills training center, and you have seen training in Holland. So you have to tell us what is the difference that you have noticed. And first introduction. Hello, my name is Rob. I'm from living in the east of the Netherlands. My dad was also a painter at the same company where I worked, but he's pensioned, so he stopped it, and I go further. But my family is quite handy to do the paint jobs. He's also an artist, also make paintings. That's also his hobby. What I've seen today, it was really nice. The girls were throwing flowers, and it felt really happy for me. And we come in and teach them how to paint. And their paintbrushes, it was a bit flat, and I said, we give them some round brushes and some rollers to learn them the skills what we do in our country. And what I've seen, the paint himself, it was a little bit, it was not a lot of pigment in it. It was a little bit, how do you say?
it was a little bit. It turns into the wood, so you need then the other paint, the finish paint, to make it better. And how to divide the paint, I've learned it with the roller and the paintbrush, and then it becomes better. The result was a lot better what the girls and boys did. Also had how to use did you use wallpaper, but I didn't see wallpaper in. इंडिया में काफी सारी कुछ संस्थाएं हैं जैसे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बी एडब्ल्यू आई के उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि अड़ा राजीव शर्मा ने कहा कि बी एडब्ल्यू आई जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ है जो कि 130 देशों में श्रमिक हितों के लिए काम कर रहा है और कौशल विकास के माध्यम से महिला व युवा श्रमिकों को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेंगे। डेलीगेशन आया है, कहाँ से है ये लोग और किस उद्देश्य से यहाँ आए हुए हैं इंडिया में? ये जो प्रतिनिधि मंडल आया है ये हॉलैंड से आया है और इसमें ये सब यूनियन के प्रतिनिधि हैं। वहाँ का जो यूनियन संगठन है FNV जो सबसे बड़ा संगठन है नीदरलैंड्स का, और इनके साथ जो आए हैं 2 पेंटर्स आए हैं। और जैसा कि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के माध्यम से और मंत्रालय की मदद से खासतौर से पेंट एंड कोटिंग स्किल काउंसिल की तरफ से 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है। आज ये जो हमारे जो साथी आए हैं नीदरलैंड से, उन्होंने भी इस प्रशिक्षण में भाग लिया और जो भी ट्रेनीज थे उनको जानकारी दी कि इनके देश में किस तरह से पेंटिंग का कार्य किया जाता है। और इन्होंने जो वहाँ के ब्रश भी साथ में लेकर आए थे और अलग अलग जो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसकी भी इन्होंने जानकारी दी। अभी जो प्रैक्टिकल क्लासेस वहाँ पर चल रही हैं उसमें भी अगले 2 दिन भी ये सम्मिलित होंगे और भविष्य में इनका ये प्लान है कि यहाँ पर ख़ास तौर से जो ट्रेनर्स हैं उनको भी प्रशिक्षण एक बार इस वर्ष में फिर से उसके लिए योजना बनाएंगे। ये तमाम प्रयास उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि कौशल विकास केंद्र की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ही यही है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सम्मानजनक व नियमित रोजगार मिल सके। संगठन का बहुत लंबे समय से मौक करता आ रहा है कि हर श्रमिक को रोजगार व बच्चे के हाथ में कलम होनी चाहिए। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज की डेलीगेशन अगर आया है आपके स्कूल में जो महिलाएं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसा रहा पहला दिन? आज का दिन बहुत अच्छा रहा। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो है UPGMS BWI के सहयोग से और जिसमें पहले जो हमने ये कार्यक्रम DGB के माध्यम से शुरुआत की थी महिलाओं को, जो हमारा वहाँ चाइल्ड लेबर स्कूल चल रहा था पहले फतेहपुर सीकरी में, वहाँ पत्थर खदान का काम बंद हो गया और उन्हीं बच्चों को और उस क्षेत्र की महिलाओं को कौशल विकास से जोड़ने के उद्देश्य से कौशल विकास केंद्र की स्थापना हुई, जो BWI और UPGMS का संयुक्त प्रयासों से वहाँ पर जो है अभी तक 180 महिलाओं को हम प्रशिक्षित कर चुके हैं। और आज हमारे स्कूल में सेंटर में नीदरलैंड की ट्रेड यूनियन के साथी और पेंटर के रूप में उन्होंने जो हमारे प्रशिक्षार्थियों को अपने यहाँ का जो पेंटिंग की गुणवत्ता सिखाई, उनको जो है अपना मार्गदर्शन दिया। और वो मैं जो है अपनी UPGMS यूनियन की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो है आकर के हमारे काम को देखा और लोगों को सिखाने का जो इनका प्रयास है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे का अनुभव मिलता रहे और अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहे। इसमें जो है BWI का हमें समय समय पर गाइडलाइंस मिलता है, उसी से हम लोग जो है आगे चलते हैं। अभी जो है सरकार से भी हमारा प्रयास चल रहा है, हमने कई बार मीटिंगें की हैं, अब भी कई मीटिंगों में भाग लिया है, होटलों में हमने सभी लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे द्वारा संचालित कौशल विकास में जो ट्रेनिंग महिलाएं ले रही हैं पेंटिंग की, उनको रोजगार मिले, रोजगार से जुड़ें या वो स्वयं का रोजगार खोलें। हम इस संबंध में कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई है और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हमारी के ये प्रयास है कि हम महिलाओं को रोजगार देने में अग्रम कदम करें, लोगों से संपर्क करें। और शर्मा जी ने सब बताई दी आपको कि हमारा प्रयास है ठेकेदारों से, कंपनियों से, सरकार से रोजगार दिलाने। कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतिभागियों के साथ साथ बी
एयरब्लू आई प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बहिन शगुफ्ता रियाज, पिकी जैन, हरी सिंह, रेखा, प्रेम प्रकाश, उमेश कुमार आदि उपस्थित रहे।